Good morning, children. Good morning to all. So, I am your new teacher, English teacher, Rashmi Joshi. My name is Rashmi Joshi, and from now onwards, I will be teaching you English. I will be teaching English to class 4. So, today we are going to read the chapter The Blind Man and the Elephant. So, this is a short story, it is a parable. This is a parable. Parable is a short story with a moral, जिससे हमें एक शिक्षा मिलती है. So, this story, as the name suggests, it is about 3 blind men and elephant. So, before we start this chapter, I want to ask you that have you seen elephant? Yes, I'm sure we all might have seen elephant. But from a blind man point of view, blind men cannot see anything. Blind people are the person who doesn't have vision. So blind men, they don't see anything. So from blind men point of view, they can't see anything. If they have to see an elephant, they can see with their senses. They can only touch. They can only touch it. So how this story goes about this elephant, we'll see. So I'll be reading this chapter. I'll be explaining it to you. Those who are already teaching with me online will be able to understand there also. But for those who have some network issues and they cannot learn there in Google Meet, they can just see this, because I think many of you don't have the book also. So while I am reading the chapter, you just go through it and then you can see this. So we'll start this chapter. So once upon a time, a wise man came to a village with his elephant. The elephant name was Gajju. It was very large and looked like a mountain. As you can see in the picture, there is an elephant and there was a man who came to a village में आया था with his elephant. I am teaching you in Hindi also. I am explaining it in Hindi because many students might not be knowing. Okay, and just see how I am pronouncing. किस तरह से मैं बोल रही हूँ, because those words should be pronounced like that only. So उस elephant का नाम गज्जू था. It was very large and looked like a mountain. वो बहुत ही बड़ा था, विशाल था और वो ऐसा लगता था जैसे कोई पहाड़ है. Many people came to see and touch him. बहुत सारे लोग उसको देखने भी आए और उसको टच करना चाहते थे. टच द एनिमल. गज्जू वॉज अ टेम एनिमल, सो नो वन वॉज अफ्रेड ऑफ हिम. गज्जू एक टेम एनिमल था. सो टेम का मीनिंग हियर इट इज़ गिवन. यू कैन सी द मीनिंग ऑफ टेम हैज़ बिन गिवन. वेट अ सेकेंड. yes, so meaning of tame has been given. Tame is gentle. When we see wild animals, जो wild animals होते हैं, they are not tamed, वो जंगली होते हैं. And taming means जो domesticated होते हैं, जिनको वो शांत होते हैं, they are not aggressive. So गज्जू was tamed. गज्जू was tame. वो gentle था, वो बहुत ही शांत था. So nobody was afraid of him. इसलिए कोई उससे डरता नहीं था. Four friends also came to see the elephant. 4 दोस्त भी उसको देखने के लिए आए. As none of them had seen an elephant before, क्योंकि उन चारों ने कभी भी कोई एलिफेंट नहीं देखा था, हाथी नहीं देखा था. They were very eager to see one. वो ऐसा एक हाथी देखना चाहते थे. However, something was very different about 4 friends. All of them were blind. उन 4 दोस्तों में एक चीज़ थी जो कॉमन थी. क्या डिफरेंट था? दे वर ब्लाइंड. वो देख नहीं सकते थे. दे वर ब्लाइंड. सो यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो. नाउ वन बाय वन द फ्रेंड केम. अब सारे दोस्त एक एक करके आए. द फर्स्ट वन टच द एलिफेंट. जस्ट अ सेकेंड. द फर्स्ट वन टच द एलिफेंट्स लेग एंड सेड द एलिफेंट इज़ लाइक अ ट्री. पहले वाले ने दोस्त ने क्या किया? एलिफेंट का लेग पकड़ा एंड देन ही सेड एलिफेंट इज़ लाइक अ ट्री. ये तो एक पेड़ के जैसा है. द सेकेंड वन टच द टेल ऑफ द एलिफेंट एंड सेड नो दिस एलिफेंट इज़ लाइक अ रोप. अब दूसरे वाले ने तो उसकी पूंछ पकड़ ली एंड देन ही सेड नहीं, ये तो रोप जैसा है, ये तो रस्सी जैसा है. द थर्ड फ्रेंड केम एंड ही टच
द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट एंड ओपाइंड। एंड जो थर्ड फ्रेंड था ही हैड कम और उसने क्या किया, उस एलिफेंट की ट्रंक पकड़ ली। ट्रंक इज सूंड जो होती है उसकी सूंड, वो सूंड पकड़ ली एंड देन ही सेड, उसका ओपाइंड मीन्स ओपिनियन, द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओपाइंड इज ओपिनियन। उसका ये कहना था, उसकी ये राय थी कि यू बोथ आर रॉन्ग, आप दोनों ही गलत हो। द एलिफेंट इज़ लाइक अ स्नेक, ये तो एक सांप के जैसा, बिकॉज द ट्रंक वॉज लिटिल राउंड कर्व थी, तो उसने बोला ये तो सांप है। सो एवरीबडीज ओपिनियन वॉज डिफरेंट एंड वाई इट वॉज डिफरेंट, बिकॉज दे वर ब्लाइंड, क्योंकि वो अंधे थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था। द थर्ड फ्रेंड, अब ये हो गया, उसने बता दिया थर्ड फ्रेंड ने कि स्नेक है। द फोर्थ फ्रेंड केम फॉरवर्ड, वो आगे आया, बढ़ा, एंड फाउंड द एलिफेंट्स ईयर एंड सेड ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग। और उसने एलिफेंट का कान पकड़ा, बिकॉज ही कैन ओनली टच इट, द ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी, सो ही हैज़ टच हिज ईयर्स एंड ही सेड ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, आप सभी गलत हो। द एलिफेंट इज़ वेरी मच लाइक अ फैन, क्योंकि ईयर्स, एलिफेंट के ईयर्स, इफ़ यू हैव लुक द ईयर्स ऑफ द एलिफेंट इट लुक्स लाइक फैन। तो उसने बोला आप सभी गलत हो, इट लुक्स लाइक अ फैन। उसने फ़ैन बोल दिया। अब चारों का व्यू वॉज डिफरेंट, फोर ऑफ देम वर डिफरेंट, सो दस दे ऑल बिगैन टू आर्ग्यू। आर्ग्यू इज़ एन आर्ग्यूमेंट, जब सबके ओपिनियन मिलते नहीं हैं, जब सब अलग अलग तरीके की सोच रखते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। सो दे ऑल बिगैन टू आर्ग्यू, वो सब लड़ाई करने लगे अमंग देमसेल्स, अपने आपस में ही, देमसेल्स लाइक आपस में, एंड स्टार्टेड फाइटिंग, वो लड़ने लगे। दे ऑल हैड देयर ओन व्यूज़ ऑफ वॉट द एलिफेंट वॉज लाइक, उन सबका अपना एक व्यू था, अपना एक नज़रिया था। वो बोलते थे कि एलिफेंट ऐसा दिखता है। ईच ऑफ देम थॉट दैट ही वॉज राइट, और हर किसी फ्रेंड को ये लग रहा था कि मैं सही हूँ। फर्स्ट फ्रेंड को लगता था मैं सही हूँ और सेकेंड को लगता था मैं सही हूँ। सो एवरीबडीज़ व्यू वॉज डिफरेंट। So what happened next? On seeing the friends fighting, the wise men came forward and told them. अब वो वाइज मैन कौन था? दैट वॉज अ पर्सन हु हैड दिस एलिफेंट। वो उन्होंने देखा कि जब ऑल द फ्रेंड्स वर फाइटिंग, जब वो लड़ाई कर रहे थे, तो ही केम फॉरवर्ड टू एंड टोल्ड देम, और उन्होंने उसको बोला, डियर फ्रेंड्स, ईच वन ऑफ यू इज़ सेइंग द राइट थिंग। आप सभी, ईच वन यू, आप में से हर एक जना ठीक बोल रहा है, यू आर राइट, but when your views are different, your views are put into contest, then none of you is right, because each one you is describing only a part of the big animal. उन्होंने बोला जब कॉन्टेस्ट में, जब सही तरीके में, सही ओपिनियन में आपकी बात लाई जाएगी, तो आप सबका व्यू गलत है। अपने अपने तरीके से यू आर राइट ऑन योर ओन, बट अगर सही प्रोसेस पे रखा जाए, सही तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं करके आपकी बात रखी जाए, सो आप सब उस बड़े एनिमल का एक एक पार्ट ही बता रहे हो, आप उसको एक साथ डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। नाउ वॉट, हाउ इज़ दैट, ही सेड, उसने बोला ये कैसे? आज द फ्रेंड्स ने पूछा ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ? द वाइस मैन ने एक्सप्लेन किया, द एलिफेंट्स लेग लुक्स एंड फील लाइक अ पिलर। एलिफेंट के जो पैर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े विशाल से होते हैं, तो उन्होंने बोला कि वो तो पिलर के जैसे हैं, वो तो एक खम्बे के जैसे हैं। द टेल इज़ लाइक अ रोप, और जो पूँछ है वो रस्सी की जैसे दिखती है। द ट्रंक डज फील लाइक अ स्नेक, और ट्रंक सच में, जैसा वो फ्रेंड बोल रहा है, ट्रंक सांप के जैसे ही दिखती है, बिकॉज इट इज़ कर्व। सो ट्रंक इज़ लाइक अ स्नेक एंड ईयर्स आर लाइक फैन, और ईयर्स सच में, आँखें, जो उसके कान हैं, दे आर रियली लाइक फैंस। So you all should have pooled your information instead of arguing over who is right. So आप लोगों को क्या करना चाहिए था? All of you are right. आप सबकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, बट आप सब लोगों को pooled your information. Pooled मतलब इकट्ठा कर लेना चाहिए था। आप सबको अपनी इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी है, जो आप सबको जानकारी थी इस सब चीज़ की, उन सबको आपको इकट्ठा करना चाहिए था। You should have pooled it. तो इकट्ठा करने के बाद आपको सही तरीका, आपको सही पता चल जाता कि how that animal looked like. तो ये दिस ही टेल्स देम, वो बताता है, ठीक है। द फोर फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड डिड एज एडवाइज बाय द वाइज मैन, दस दे वर फाइनली एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द एनिमल इन देयर माइंड। अब वो फोर फ्रेंड्स ने, चारों दोस्तों ने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की, उनको ये ज्ञान हो गया कि हमारी मिस्टेक क्या है, और उन्होंने क्या किया कि
उस वाइस मैन ने जो बोला था उसके कहे अनुसार उन्होंने किया, और उनको ये क्लियर पिक्चर आ गई कि हाँ, जब उन्होंने इमेजिन करना शुरू किया, व्हेन दे स्टार्टेड इमेजिनिंग कि उसके कान ऐसे हैं पंखे के जैसे, उसके पैर ट्रंक, उसके पैर पिलर के जैसे हैं, उसकी सूंड ट्रंक के जैसी, तो उनको आइडिया हो गया कि इन सब चीज़ों को इमेजिन करके अगर एक जोड़ के बनाए तो एनिमल कैसा दिखता है. They understood that one should examine a matter from all sides and only then give his or her opinion. उनको ये पता चल गया कि जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो सबको अपने अपने नज़रिए से नहीं सोचना होता है, सबको दूसरों की भी बात सुननी होती है और फिर डिसीजन लेना चाहिए. बिना किसी की बात सुने हमें डिसाइड नहीं करना चाहिए. सो इनको ये रियलाइज़ हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. द लास्ट पैराग्राफ इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी. इससे हमें पता चलता है, जो लास्ट लाइन है इससे हमें पता चलता है कि क्या इस स्टोरी का मॉरल है, शिक्षा क्या मिलती है. देयरफॉर, इसलिए, वी शुड नॉट क्वारल विथ अदर्स हु हैव डिफरेंट ओपिनियंस बिकॉज एवरीबडी लुक्स एट थिंग्स फ्रॉम द डिफरेंट एंगल्स. हम सबको उन लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए जिनकी अलग अलग राय होती है. अगर आपका दोस्त कहता है कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से होती है तो आप उससे लड़ने नहीं लग जाएंगे, आप उससे लड़ने नहीं लग जाएंगे कि नहीं ये चीज़ इस तरीके से होती है. उसका अपना नज़रिया है, उसकी अपनी राय है, सो आप उसकी बात से भी सहमत होंगे और आपको सभी की बातों को एक साथ रख के ही डिसीजन लेना है. पहले ही किसी से लड़ना नहीं चाहिए. पहले वी हैव टू लुक एंड वी हैव टू पूल द इन्फॉर्मेशन, और फिर हमें सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ इकट्ठा करके सोचना चाहिए कि इसकी बात भी सही है, ये बात भी सही है और ऐसा हो सकता है. सो वी शुड लुक थिंग्स एट अदर पीपल्स ओपिनियन ऑल्सो. वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट अदर पीपल. हमें हमेशा दूसरे लोगों की राय को भी अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ़ करना. हमें दूसरे लोगों की राय की भी तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी बातों की भी तारीफ़ करनी चाहिए. दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग आवर रिलेशंस विद देम. इस तरीके से क्या होगा, हमारा रिलेशन, हमारा जो उनके साथ संबंध है उस संबंध को बनाने में इसकी बहुत ही मदद मिलती है. तो हम अगर छोटी छोटी बातों में नहीं तूने गलत कहा, तुमने सही नहीं बोला और इस तरह